करूंगी शनाली बोस। शनाली इज अ वेरी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म डायरेक्टर और उनकी फिल्म आमू वन द नेशनल फिल्म अवार्ड। वो 84 के दंगों पर आधारित उससे निकली हुई एक कहानी है। मैं गुजारिश करूंगी अब शनाली अपनी बात रखें। Thank you, Farah. I'm truly humbled to be in the presence of Bilkis Bano, who is a shining beacon and inspiration for all of us in this country, and who, instead of being given the equivalent of a Paramveer Chakra and being provided by security, still lives in fear, still has to run for her life, and still cannot return to her village. I salute her long and heroic struggle, and I also salute the unknown activists who have been and given her the support in these long, hard 15 years. It is they, it is Bilkis, it is Yaqub who are the light and hope and future of our country. For me, very personally, I do find that this judgment is too little, too late, but at the same time, I do laud the fact that what is historic in it is that the first time in this country, in spite of these pogroms, genocides being carried out from the highest level, from 1984 between Delhi, Bhiwandi, Muradabad to the present Gujarat, after Gujarat, Muzaffarnagar, for the first time there has been a clear-cut verdict against those who have covered up the crime. This is extremely important. But at the same time, I just want to add something to that these people, these policemen and doctors who carried out these heinous acts of covering up the crime are still the foot soldiers. We know for a fact how organized Gujarat was from top to bottom. And the real demand has to be to continue the fight for justice, that those who have masterminded not just the crimes that took place against Bilkis and in Gujarat, but who also masterminded the cover-up. Why for 15 years? Why has it been such a long struggle? Why has she been harassed for 15 years? Because those who carried out these crimes covered them up. Our own Prime Minister today was Chief Minister at the time. So why was it that these things were covered up for such a long time? This important thing that the masterminders should also be brought to justice and not get away is an important point. And secondly, to demand that right now under this, the 217 and 218 of the IPC, only 3 years is given. And yes, it's good that the court used the maximum of 3-year sentence for these doctors and the police. And just as Kavita mentioned this, it's not just a matter of covering up that they didn't take names or they didn't write an FIR. As she mentioned that they beheaded the corpses of the family members, burying them in mass graves. This is the level of the heinous acts of the cover-up. Is 3 years, is rupees 5,000, 15,000 penalty, is this what we can give people who are in the government to protect the citizens when a citizen goes with such a heinous complaint and it takes 15 years and you just get 3 years? So this is an important point, that at this time in the struggle for justice, while we hail this, we should also critically look and shout and demand that we want much harsher sentences for government officials and police who cover up crimes of this nature. The second thing that disturbed me in this judgment, while I laud it, I would also like to point out that at one place it dismissed the charge of conspiracy and quoted that this was an act in the spur of the moment. And in another part of the judgment, it has clearly said that these men who carried out these heinous acts were out hunting for Muslims. So that is clearly an act of conspiracy, as they have cited in the Nirbhaya case. I too do not stand for the death penalty, and this is not an issue of death penalty versus not death penalty. What should Bilkis ask, not us? This is what the media is making a circus into, and this is really not the point here. The point here is, when rigorous life imprisonment has been given, why has it not been said that there should be no parole for these people? Time and time again, these men have come out on parole. The Bombay High Court should have said that there not be any parole, and we should now in fact demand that there be no parole, because that is why she will continue to live in fear if there is parole given to these people. But other than that context, I will again, because you talked about Amu, and say that it's not just that I made a film on Amu, I myself was a witness at the time. We saw that how from top to bottom, goons carried out these killings. And what's happening in all these judgments is this language is used of riot. This language is used of spontaneity. And what's extremely important is for us to come away understanding very clearly that these were acts carried out by the Indian state. These were organized pogroms against a specific minority. The Sikhs in 1984, the Muslims in 2002. There were heinous crimes carried out by those in power, both in carrying out the crimes and then in covering up, and in making sure that justice hasn't been given.
Today, Bilkis is unfortunately not alone in her struggle for justice. There are countless widows and countless other people across the country who are fighting for justice against state terror. So it gives me once again enormous, deepest honor to be here with Bilkis and be the voice to say that we cannot dismiss the fact that the Indian state is the one in the ultimate analysis who is behind this, until we demand that the Raj Dharma of the state is security and protection, Sukh and Raksha of all its citizens. Till then, we cannot rest in the struggle for justice. Thank you. Thank you, Shonali. मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी विजय हिरेमठ जो कि बिल्किस के वकील थे मुंबई की हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, कि हमने बहुत जजमेंट के बारे में सुना है. इस जजमेंट को शायद इस मंच पर विजय से बेहतर कोई नहीं जानता. मैं चाहूंगी विजय आप थोड़ी सी रोशनी डालें. What are the points of this judgment that jumped out at you in terms of the issues that many of the panelists have raised? Thank you, Farah. First of all, I would like to congratulate Bilkis for this judgment. Without her courage, and we would not have been here. She has shown us a way to fight in this world, because we see many victims who, after this long struggle, drag out or want to pull out of the struggle, maybe threats, maybe many other things. But she has stood by whatever she had said for 15 years, and we have to admire that. Without her, this judgment would not have been there. A little bit personal note on that: when the facts of the case are so horrific that when I first took up the matter and read her statement in evidence that was in court, you won't believe I couldn't sleep for 5 days. It's such a horrific act that was committed against her and her family, that it is a welcome judgment. It gives us a lot of hope in this all struggle that we are facing, the current situation in the country, that judiciary might be with us. That's what the hope is about. Secondly, as Kavita has already said few things about the judgment, that it is one of the few, we have not still come across a judgment where in a case of sexual violence, police officers have been convicted. Of course, there is murder also, but say case of sexual violence. And the judgment is categorical about the role the police played in this case. And I agree with Shonali, why only time spent, that is between 3 to 4 years. When you look at the evidence, when you look at the acts that they have committed, and the complicity of the police in entire covering of the whole issue, till the CBI comes in, nobody was arrested. In that situation, the court should have been giving a much harsher punishment than what it has given to these police officers. I would like to read some of the paras from the judgment regarding the police. What the court says is, in para 30 it says that it also cannot be lost sight that as investigation by Gujarat police was not proper, the prosecutrix approached the Supreme Court, and the Supreme Court transferred the investigation to CBI. Looking to all these facts, we hold that they held that, because the whole argument of the Gujarat police was that FIR was wrong and it was not recorded properly. They further say that all these lapses, which clearly appear to be deliberate, show that the investigation is not only faulty, but it is downright tainted. Very importantly, the accused persons who recorded her statement were attached to Limkheda police station, and they tried to gag the mouth of the prosecutrix, and the FIR and the statement of the prosecutrix were mixed with truth and falsehood. It was a big job for us to sift through the evidence on the basis of other oral, documentary or circumstantial evidence. Her evidence has emerged before us like a collage which we find completely trustworthy. Now in these situations, it's very difficult to understand why such a short sentence was given to the police officers. Though we welcome the judgment, it has gone a little bit forward from what it was in the trial court. Trial court had convicted only 12 people who had taken part in the act, and had acquitted all the police officers and the doctors who had played a major role in the cover-up. And one of the reasons for the entire delay has happened is also because of the cover-up.
So under these circumstances, such a judgment is always welcome. But of course, there is a legal team, there is a legal strategy will be taken whether we should appeal against the sentences of all these police officers. Thank you. Thank you, Vijay. The last speaker before Bilkis speaks, Dr. N.C. Saxena. Dr. Saxena, many of you will know him, but many of you may not know the background and the reason that he is here today on this panel. He is not only an extremely senior bureaucrat, he was a member of the Planning Commission, he was a member of the National Advisory Council. He is a bureaucrat in the scholar bureaucrat mode, but most importantly, Dr. Saxena is somebody who, from his days as a young IAS officer all the way into many decades, has seen and has known communal violence, whether in Aligarh, in Meerut, in Muradabad, and he has an understanding of the nature of this beast called communal violence in India. And we wanted Dr. Saxena to share with us his thoughts on how he understands this particular verdict in that context. बहुत बहुत शुक्रिया फरा जी। जैसा कि आपने कहा, मैं अपने कार्यकाल में शुरू में सिटी मजिस्ट्रेट कानपुर था और फिर कई वर्ष तक डीएम अलीगढ़ रहा और डीएम आगरा रहा। सौभाग्यवश मेरे ज़माने में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मैं गवर्नमेंट का पार्ट हूँ और आप था, तो मैंने गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री से सारी फाइलें निकाल कर, जो प्रेस में नहीं आती हैं, जो कॉन्फिडेंशियल हैं, सब स्टडी किया जानने के लिए कि राइट्स में क्या होता है, इसका क्या रोल रहा है। और मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ और बहुत ही दुर्भाग्यवश ये मैंने देखा कि अधिकतर ऐसे राइट्स जहाँ पर कि कई दिन तक राइट्स चले हों, वहाँ पर मुसलमानों की जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, 10 times 15 times देन द डेथ्स ऑफ हिंदूज। और दूसरी बात ये है कि इन सब के पीछे पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है। There is strong prejudice in the minds of the police. They think that riots are instigated by Muslims, and therefore their strong action is taken against them in various ways. मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, और ये सब बातें जो हैं वो प्रशासन के पास या तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं या फिर जुडिशियल इंक्वायरीज हुई हैं। जैसे भागलपुर में 1989 में जहाँ लगभग 800 मुसलमान मारे गए और 50 हिंदुओं की डेथ हुई थी, उसमें ये देखा गया कि जो इंक्वायरी कमीशन ने कहा कि एसपी का, भूल जाइए कांस्टेबल्स को, हेड कांस्टेबल्स को, एसपी का जो रोल था वो बहुत ही अधिक एंटी माइनॉरिटी था। मैं रिपोर्ट की 2 लाइन पढ़ना चाहूँगा। We would hold Dwivedi, the then SP Bhagalpur, wholly responsible for whatever happened before 24. Pardon? Go ahead. We would wholly hold Dwivedi, the SP Bhagalpur, responsible for whatever happened before 24th October 89, on 24th itself, and after 24. His communal bias was fully demonstrated by his manner of arresting the Muslims and by not extending them adequate help to protect them. The manner in which the search was conducted was reminiscent of the searches in occupied Europe by the Nazis. उसके पहले भी अगर आप जाएं, भिवंडी राइट्स में मदन कमीशन की रिपोर्ट है, वहाँ भी उन्होंने ये कहा है मदन कमीशन ने, मैं पढ़ सुनाता हूँ, Muslim prisoners were beaten both when arrested and while in police custody. There was almost no food or water for the prisoners on May 7 and May 8, 1970. मैंने स्वयं एक राइट हुआ था मेरठ में 1982 में, उसकी मैं जमात में स्वयं की थी, और उस राइट में मैंने देखा कि पुलिस को, पीएससी को खुली छूट दे दी गई। वो फिरोज बिल्डिंग के अंदर गए और ठक 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 जो भी सामने आया उन सबको उन्होंने मार दिया। इसके बारे में रजत शर्मा जो आते टीवी चैनल चलाते हैं, उस जमाने में वो जर्नलिस्ट थे और नुकर में काम करते थे, उनकी जो रिपोर्ट थी वो पढ़कर सुनाता हूँ। स्टील हेलमेट राइफल wielding जवान forcibly entered the Muslim houses, overpowered everyone inside
and beat them with rifle butts. Then suddenly the Jawans opened fire. More than 100 bodies were removed by the PSC. मैं खुद भी वहाँ पर मैंने बहुत सारों के घर में गया और मैंने देखा. I visited the houses of Abdul Rashid, Sheru, Anwar, Sherdin, etc. and found that they had all been killed and they were bullet marks on the walls, blood-stained clothes belonging to the deceased, and many photographs of the houses which were etc. दुख की बात ये भी है कि इन सभी मामलों में या तो पुलिस की रिपोर्ट लिखी नहीं जाती है या फिर इन सब मामलों में फाइनल रिपोर्ट हो जाती है. आज ये भी जितने भी राइट्स मैंने स्टडी किया सिवाय हाशिमपुरा को छोड़कर, हाशिमपुरा आपको ख्याल होगा 1987 में मेरे राइट्स हुए थे जिसमें पीएससी ने 40-50 मुसलमानों को पीएससी एक ट्रक में लाकर कैनाल के बाहर ठक 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 को गोली मार दी थी. उसमें केस गया कोर्ट तक वो इसलिए कि उस केस का पीएमओ की तरफ से राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर थे उसकी मॉनिटरिंग हो रही थी. लेकिन फिर भी वो केस बजाय सीबीआई के देने के उन्होंने लोकल सीआईडी दे दिया और सीआईडी ने सारे पुलिस जो रिकॉर्ड्स वगैरह थे उसमें क्या गड़बड़ थी उसकी अच्छी तरह से किताब है जो जमाने एसपी थे वहाँ पर विभूति नारायण राय थे. मैं तो आपसे अनुरोध करूँगा उसको जरूर पढ़ें. ये एसपी के ज़माने में इनकी 2 किताबें हैं, इलाहाबाद दंगे के बारे में और हाशिमपुरा दंगे के बारे में. विभूति नारायण राय उन्होंने कहा हुआ है कि सीआईडी की जांच की वजह से ये देखा गया कि सारे के सारे जो लोग थे, अभी भी 2 साल पहले जजमेंट हुआ है इसका, हिंदू अखबार मैंने पढ़ा, ये सब के सब छोड़ दिए गए. तो इस तरह से मेरे समझ में बिल्किस का पहला मामला है जिसमें कन्विक्शन हुआ है और पुराने मामलों में ये पक्षपात पूर्ण रवैये की वजह से ये सब ऐसा जो है इंजस्टिस हुई है. मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस पक्षपात को दूर करना आसान नहीं. ये समझना कि हम एक भाषण दे देंगे और सारे पुलिस अधिकारी और आईएएस ऑफिसर्स के दिमाग से प्रेजुडिस निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता. मैंने स्वयं इस सब्जेक्ट पर कई बार भाषण दिया है मसूरी के एकेडमी में और मेरा अनुभव ये रहा है कि जिनकी ऐसे लोग जिनके दिमाग में प्रेजुडिस कम है, स्लाइट प्रेजुडिस है, वो तो समझते हैं और शायद वो बायस दूर होती है. पर ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो डीपली बायस है, उससे हमारे भाषण से उनकी प्रेजुडिस और बढ़ जाती है. तो सब मिलाकर इसमें कैसे इसको फाइट किया जाए, सबसे पहले जरूरी ये है कि शासन इस बात को एडमिट करे कि हाँ हमने हमारे पुराना रिकॉर्ड ये कहता है कि इसमें काफी अधिक पक्षपातपूर्ण रहा है. ये बात सही है कि अगर आप होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट, पता नहीं ये रिपोर्ट और है जो शायद पब्लिश नहीं की गई है, होम मिनिस्ट्री ने इस बात को माना है अपनी रिपोर्ट में. मैं पढ़ना चाहूंगा. There were serious allegations that the police remained passive on many occasions. In many instances, police remained idle while looting, arson and murders were committed in their very presence. In certain cases, police were an active participant in the violent mob. तो कांग्रेस की बात तो मानी जरूर है, लेकिन इसके बारे में कोई राज्य सरकारों को कोई आदेश दिया हो जिसमें कि और ये अनुरोध किया हो कि सारी ट्रेनिंग वगैरह ठीक किया जाए, ऐसा नहीं देखा गया. मैं जब लखनऊ में था पोस्टेड और विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री थे तो मैंने उनको इस बारे में बताया और ये अनुरोध किया कि कम से कम पीएससी में आप एक नया पोस्ट करें जिसमें कि मुसलमानों का नंबर बढ़ाया जाए. वो एग्री कर गए, उन्होंने एक नया स्पेशल फोर्स बनाया, लेकिन जब तक उसका रिक्रूटमेंट होता तब तक वो चले गए वहां से और उसके बाद से जो रिक्रूटमेंट में भी वो 3-4% मुस्लिम आ पाया नहीं हो पाया. और जहाँ तक मैंने कहा कि जो प्रेजुडिस का मामला है बहुत ही सीरियस है, इसके बारे में हम कैसे डील करें और कैसे इसको हम सामने लाएं, ये बहुत जरूरी है. आजकल वो ऐसी कोई, मैं समझता हूँ कि जो माहौल आजकल है उसमें तो बहुत मुश्किल नजर आता है, लेकिन फिर भी सिविल सोसाइटी को और सोशल मीडिया को इस बारे में सचेत रहना चाहिए. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सक्सेना. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी बिल्किस से. बिल्किस, अगर आप अपना बयान, आप इस वक्त क्या कहना चाहती हैं पूरे देश से, देश की औरतों से, यहाँ हमारे आईएसएस के
साथियों से। थैंक यू दीदी, और मैं आप सबका आभारी हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे केस में जो हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में जजमेंट दिया है बहुत अच्छा दिया है, और इससे मैं बहुत खुश हूँ और मेरा परिवार भी बहुत खुश है। और इससे ज़्यादा हमको ये हुआ खुशी कि जो पुलिस वाले और सरकार दोनों डॉक्टर उन सबको गुनहगार ठहरा गया है, और सजा उनको आगे होनी चाहिए, वही मैं चाहती हूँ। बिल्किस, थोड़ा सा अगर आप यहाँ आए साथियों से ये बताओ कि पिछले 15 साल तुम 19 बरस की थी जब ये हादसा हुआ, सबके साथ थोड़ा सा ये शेयर करो कि ये 15 साल तुमने कैसे काटे हैं। ये 15 साल हमने ऐसे काटे हैं कि कहीं कहीं भटक के इधर उधर जा के हमने काटे हैं। बहुत तकलीफें झेली है हमने, और हमारे परिवार को भी, उनको भी बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। और हमारे अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे देश के न्याय तंत्र पर मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे मेरा न्याय मिला है। बिल्किस, थोड़ा सा अपने बच्चों के, अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में कुछ शेयर करना चाहोगी जो तुम बता रहे थे? अब मैं वही कहना चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी की नई शुरुआत करने हम जा रहे हैं, और हमारे बच्चे को आगे पढ़ाए बढ़ाए और बड़े करें, वही चाहती हूँ मैं। याकूब, तुम कुछ जोड़ना चाहोगे अपने बच्चों के बारे में? मैं वो जोड़ना चाहता हूँ जो बिल्किस ने भी बताया कि मेरे बच्चों को मैं पढ़ा के आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और मेरी बिल्किस का कहना वो है, तो मेरा भी कहना बिल्किस का साथ संबंध है कि मेरी जो बड़ी लड़की है वो वकील बनना चाहती है। उसकी उम्मीद है कि हम बैठे, उसके लिए हम एक लंबी लड़ाई से गुजरे हुए हैं, और आज 15 साल हो गए उस लड़ाई को लड़ते लड़ते, और आज हमको एक एहसास हो रहा है हमारे देश के न्याय तंत्र पर कि हमको भरोसा आया है कि हमारे देश में और आज भी कोई न्याय बचा है। और जैसा बिल्किस को न्याय मिला है, ऐसा हर महिलाओं को, हर समाज की महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अगर प्रेस के साथियों को कुछ सवाल पूछना है, द फ्लोर इज योर्स। आप सवाल हमसे पूछें, बिल्किस से पूछें, पैनल पर बैठे किसी भी वक्ता से पूछें, और अगर नहीं तो हमारे खुद बहुत से सवाल हैं जो मुझे लगता है बिल्किस आपके साथ बांटना चाहती है। धन्यवाद सबको बुलाने के लिए, और आप सबका धन्यवाद। इसमें आपको ऐसा लगता है कि आप ये केस को हाई कोर्ट से आप सेटिस्फाइड है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में भी आप इस केस को आगे लाना चाहती है कि आगे और एक्सटेंशन और जल्दी इस पर काम हो सके? कोई ऐसी चीज़ बाकी है जो आपको लगता है अभी भी आपको सुप्रीम कोर्ट या फिर से हाई कोर्ट में रिक्यूमेंडेशन या कोई भी तरह का दाखिला, और आपकी सेफ्टी के लिए गुजरात में आज भी आप अपने गांव नहीं जा सकती, उसके लिए कोई आप स्पेशल केस अलग से दाखिल करना चाहेंगे? आभार। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी तो हमारा न्याय जो हमको मिला है, और इससे मैं वो चाहती हूँ कि हम हमारी जिंदगी को नई शुरुआत करने जा रहे हैं, और
आई थिंक एक सेकेंड माधवी, थोड़ा आई थिंक कुछ मुख्य शब्द सेटिस्फाइड और सेफ्टी, शायद वो नहीं, सेटिस्फैक्शन का अर्थ शायद। एक सेकेंड मैं वो चाहती हूँ कि उस जजमेंट से मुझे बहुत संतोष मिला है और बहुत खुशी हुई है, और इतने तक मैं पहुँच के बैठी हूँ। मैम, ये जो जब आप पूरे मामले को कोर्ट में ले गए, आप और संघर्ष कर रहे हैं, इस दौरान किस तरह का आपको दबाव झेलना पड़ा, किस तरह की कोई धमकियाँ मिली, चाहे वो किसी तरह के पक्ष से हो, सरकार से हो, पुलिस से हो, कानून से हो, किस तरह की धमकियाँ दी जाती थी आपको, किस तरह का डर था? हमको 15 साल में बहुत सारे धमकियाँ आती थी हमारे पर, और बहुत सारी तकलीफें उनको झेलनी पड़ी। हमारे छोटे छोटे बच्चे को ले लेके हम कहाँ कहाँ घूमे, और हमको बहुत परेशानी हुई, और ऐसे केसेस को हम जैसी औरतों को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, इतना वक्त नहीं लेना चाहिए। याकूब, तुम इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हो? कौन लोग थे जो धमकी देते? इसमें लोग थे जो जिसे आरोपी है, जैसे कि बिल्किस के साथ जो निचली कोर्ट ने अदालत ने जो जजमेंट दिया था उस टाइम पे, उसके बाद की जो जिंदगी थी हमारी, बहुत डर रहे थे हम लोग कि बार बार उनको पैरल मिलती थी, हर बार 2 महीने में पैरल मिलती थी, गांव में आते थे वो लोग और उनका खुद का पर्सनल मीटिंग करते थे वो लोग। तो उस चीजों से भी हमको बहुत डर लग रहा था कि हम ये लोग पैरल पे आते हैं तो उसको वो लोग हमको कुछ हैरानगी करेंगे। कोई नेता या पुलिस के कर्मचारी जैसे सीधे धमकी मिली हो फोन पर, या आपको जैसे आप कोर्ट मत जाओ, केस वापस ले लो, ऐसी बातें हमने जो हम तो इतने भटके हुए डरे हुए थे कि किसी की सीधी धमकी हमने नहीं देखी है, और जो वायरल से जो धमकियां मिल रही थी उसी समझ के मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जो भी हुआ है वो हमारे साथ, और जो हम डर के 15 साल की जिंदगी गुजारी है तो उस चीज के अंदर हमने गुजारी है। आई थिंक ये माफ कीजिए, आप 4 सवाल पूछ चुके हैं। पीछे एक सवाल ये है, मेरा ये सवाल है, आप कह रही है कि मैं सबको स्पष्ट करना चाह रही हूँ कि ये वर्ड पैरोल, शायद याकूब कह रहे हैं कि जब भी आरोपी पैरोल पर आया करते थे तो उनके लिए ये एक बहुत डर और गंभीर डर की बात होती थी। वो लोग अपनी मीटिंग्स वगैरह करते थे। और मेरा माफ कीजिए प्लीज, पीछे बहुत लोग हैं क्योंकि आप सामने हैं, सो इट्स लिटिल अनफेयर। आई जस्ट वांट टू ऐड कि इन्होंने कम से कम 20 या 25 मर्तबा इन्होंने अपना घर बदला है इस 15 साल में। आप सोचिए, बच्चों को ले करके और इतने खौफ के बाद, इतने डर के बाद ये लोग आज यहाँ बैठे हैं। जी, आपका एक सवाल था। काफी कम्युनल प्रॉब्लम्स हैं, तो और महिलाओं में बहुत शोषण हो रहा है, तो आपके इस जजमेंट से आपको क्या लगता है, क्या किस चीज का प्रतीक है ये उन लोगों के लिए जो अभी भी अपना केस लड़ रहे हैं? जी, इसमें मैं वही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि हमारे केस में जो जजमेंट आया है और बाकी जो लोगों के केस में जजमेंट नहीं आया है, तो हमारे देश के कानून और देश की सरकार को वो सपोर्ट करना चाहिए कि इनको भी जल्द से जल्द उनका न्याय मिलना चाहिए। मैं चाहती हूँ बिल्किस, क्योंकि ये बच्चियों का सवाल इन्होंने पूछा है, बिल्किस ये पूछ रही हैं कि जब अभी देश में जगह जगह नफरत की आग लगी हुई है, तो आप अपने बच्चियों का भविष्य आप कैसा देश चाहती हो? आई थिंक ये पूछ रही हैं कि तुम कैसे देश में अपने बच्चियों को पालना चाह रही हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जजमेंट आया है, बहुत अच्छा आया है, इससे मैं इसकी आभारी हूँ। आप सबका धन्यवाद है, और मेरे बच्चे को आगे पढ़ाना चाहती हूँ और आगे से बड़े करूँगी और फिर हम अच्छे से रहेंगे। ये मेरा सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी आजकल जो है मुस्लिम महिलाओं के बारे में बहुत बोल रहे हैं, बहुत हमदर्दी कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहिए कि आप 15 साल से जो है न्याय के लिए लड़ रही थी, उन्होंने कभी आपको साथ नहीं दिया, कभी हमदर्दी दिखाई? तो इस वक्त प्रधानमंत्री नहीं, हमसे कोई नहीं मिला है, प्रधानमंत्री नहीं मिले हैं, और जो बाकी लोग हैं वो भी नहीं मिले हैं। उनके
और हमसे कोई सहाय भी नहीं मिली है, कुछ नहीं। आपको जवाब देंगे? मैंने जो सवाल किया है, कोई आप पैनल में से कोई आई थिंक इन्होंने सवाल जवाब दे दिया कि इनसे कोई नहीं, एक सेकंड का भी था, एक सेकंड, कोई नहीं उनसे मिलने आया है। जी आपका सवाल है पीछे, बोलिए। just want to add one thing. देखिए, जजमेंट कितने दिन रहना है नहीं रहना वो तो अदालत देती है। पेरोल जेल महकमा और होम डिपार्टमेंट मिलके पेरोल तय करता है। तो जो पेरोल लोगों को लगातार मिली, जो 2008 में कन्विक्टेड थे, तब वर्तमान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी थे बहुत, और अमित शाह होम मिनिस्टर थे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पेरोल जो लगातार उन अपराधियों को मिला है वो गुजरात सरकार दे रही थी। और इसलिए जो एक सवाल उठा है यहाँ पे कि इस चीज को हम दोबारा, चाहे नई गुजरात सरकार हो, कोई और बैठा हो, ये चीज तो हम इस पे डेफिनेटली चाहेंगे कि इसका रिव्यू हो। आप कैसे इस तरीके से पेरोल दे देते हैं और 25 बार घर बदलना है, तो उनका आतंक बना रहा, मतलब जो स्पॉन्सर्स थे इस क्राइम के, उनका आतंक बना रहा बाय ग्रांटिंग पेरोल। There are many questions. Yes, please. Yours and then yours, please. And then yours. Yes. जी। फैसला आया है डेगरा कांड पर सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले से आप सेटिस्फाई हैं सुप्रीम कोर्ट पर? और अगर आगे भी इस तरीके से जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, बिना पे आपका क्या करेगा? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ चाहिए, मुझे बदला नहीं चाहिए। जी आपका सवाल था? मैम, आपने बहुत कुछ कहा है और आपने कहा यहाँ पर कि आप अपने जजमेंट से सेटिस्फाइड हैं, मतलब संतुष्ट हैं, बट आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो 3 साल की सजा थी, क्या वो कम थी, या क्या उन लोगों को उम्र कैद की जगह फांसी दी चाहिए थी, और पेरोल की बारे में आई थिंक जवाब इसका दे दिया। और आई थिंक सवाल में कुछ, क्योंकि 3 साल तो पुलिस वालों के थे, जो उम्र कैद सुनाई गई है वो 11 मुख्य आरोपियों के थे जिन्होंने एक्चुअली इस पर वार किया था। तो ये शायद ये फर्क है दोनों। जी बोलिए। क्या आप चाहते हैं कि आगे जो आपका जजमेंट है उससे ज्यादा कोई सजा किसी को मिले? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मुझे इंसाफ मिला है वो मैं इससे खुश हूँ और मैं इससे इसके आभारी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस आप बोलिए। क्या आपको स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई हेल्प कोई मदद मुझे नहीं मिली है, नहीं सरकार से मिली, नहीं सरकार के नेताओं से मिली, और नहीं जी आप पूछिए। हाँ कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताना, मैं सामने। साथियों 1 मिनट, वो सवाल पूछ रही हैं, बिल्किस को सुनाई नहीं दे रहा, प्लीज। महिलाओं के साथ ये जो हिंसा होती रहती है उसके लिए समाज में क्या बर्ताव चाहिए? मैं ये चाहती हूँ कि सब जगह शांति रहे और अच्छे से रहे, ये चाहती हूँ। मेरा एक सवाल ये है कि एक आप हाँ, मेरा सवाल ये है, अगर और कोई प्लीज साथियों प्लीज एक सवाल पीछे है। जी जी प्लीज साथियों प्लीज जरा शांति। जी जी आप बोलिए, जो पीछे बैठे हैं। जी मैं ये कहना चाहती
चाहती हूँ कि जो आरोपी लोग जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, One thing I want to make it clear is it was a state appeal, and state has to appeal if there is any inadequate sentence. Now the accused who are there, the 20 of them, will go to the Supreme Court if they want to get acquitted, or they will suffer the imprisonment. But whether she goes or not, that will be taken decision if for enhancement of sentence against the police officer. There is a likelihood, but that decision will be taken in some time. मेरा एक सवाल ये था, मेरा एक सवाल है साथियों, क्योंकि आप लोग शायद नहीं, जी पहले आप पूछिए फिर हम जी। ये पूछ रहे हैं कि इस जजमेंट के बाद, विजय अगर इफ यू कैन हैंडल दैट, इज अ केस मेड आउट फॉर कॉम्पेंसेशन? यस। That's a sad part. The state has not come forward to offer anything so far, and actually it's shameful. They should have offered compensation way back when the first conviction came, and after that, now the Bombay High Court judgment has come in appeal. There is no compensation. The only part of which the judges have offered in a way what the fine amount has to be paid to the prosecutrix, and that is the only part which has come from. Nothing has come from the state. There is a recent judgment of 2015 which says minimum compensation of 10 lakhs in cases of sexual violence. This governments, either state or center, are sleeping on that in this case. मेरा सवाल ये था सिर्फ, मेरा एक सवाल, क्योंकि हमारे साथियों ने शायद नहीं पूछा है, मुझे लग रहा है ये बहुत जरूरी है कि ऐसी लड़ाइयों, ये बिना जीविका के, बिना एम्प्लॉयमेंट के, जब कोई भटक रहा है, 20 बार घर बदल रहा है, आज मैं सुनना चाहती हूँ याकूब से कि ये लोग अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं, और आज की राजनीतिक हालात में आई थिंक आप लोगों को ये एक इंटरेस्ट का मुद्दा होगा कि इनकी जीविका क्या थी, क्या है, और आज इनकी जीविका की क्या स्थिति है। आज मैं वो कहना चाहता हूँ कि हमारा बाप दादा के हाथ का ही धंधा हमारा जो था, वो पशुपालन का ही धंधा था, गाय भैंस बैल का ही धंधा, बकरे का धंधा है, और आज हमारे देश में उसी धंधे को भी हमारे साथ, कहने का मतलब जो कानून बनाया है, उस गाय भैंस न बेचना और लेना, और आप तो हमको मानते हैं कि आप लोग कसाई हो, आप गाय को ले जाते हो और काट डालते हो, तो वो धंधा भी हमारा चौकअप हो गया है। तो अब हमारा आगे का गुजारा भी हमको किस तरह गुजारना है वो भी सोचना पड़ेगा हमारा। मेरा सवाल ये था कि 15 साल में जो है आप जो हिम्मत दिखाई, दूसरे केस में तो एक जो लेडी थी, वो बड़ौदा का नाम याद नहीं आ रहा, वो तो पीछे हट गई दबाव में आकर, लेकिन ये पीछे नहीं हटी। ये हिम्मत कहाँ से आई? ये इनको हिम्मत कहाँ से आई? हमको हिम्मत, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमको सब लोग, बहुत सारे लोग हमारे पास आते रहते थे और हमको हिम्मत देते जाते थे, और आप सबकी भी मदद है हमारे साथ, और हमारे परिवार वालों की भी मदद है। और कहना चाहूँ, अगर और कोई सवाल ना हो, सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन हियर। यस प्लीज। मेरा का जजमेंट 5 साल में आ जाता है और उन सबको डेथ सेंटेंस मिलता है, इनका 15 साल बाद आता है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है। तो ये क्या जस्टिस है? मतलब किसी के पीछे आएगा तभी तो केस पुट अप होगा। माफ कीजिए, इनका सवाल तो सुनने दीजिए साथियों जी। मेरा सवाल ये है, हाँ, आप समझ में आ जी विजय just answer. The delay in any case can't be justified at all. Regarding the issue of death penalty, she has already said she wants justice and she doesn't want revenge. So, and also all of us probably here on this panel are against death penalty. So we don't want to do this comparison between cases. These are cases of sexual violence against women, which is a larger issue, needs to be dealt with, and it can't be dealt with giving death sentence in one case. If there are no more questions, thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे